students, welcome to Maths Mania again, and today we will discuss the remaining questions of exercise 2.2. Okay, so right now we will continue with the question number third, that is find the value of the following. We have given 4 options in the book and 2 I have written on the board. तो हमें इसमें क्या करना है, इन सारे expressions की value को find out करना है. That means we have to solve these questions. Okay, now you see first we have 297 into 17 plus 297 into 3. Okay, what we have to do, we have to if we are using simple method, that is if we will use board mass. So first we have to multiply, then we have to add, right? मतलब पहले हम क्या करेंगे, 297 को 17 से multiply करेंगे and here 297 को 3 से multiply करेंगे and then we will add both the products. फिर हम दोनों ही products को add कर देंगे. Okay? Okay. So this is first we will add these two. Okay, multiply करेंगे हम पहले. 17 sevens are, how much will come? 17 sevens are 119. So I am writing 9 here, 11 carry. Now 17 nines are 153. So 153 plus 11, that will be how much? 164 will come, right? So 4 again I will write and 16 is the carry. Now 17 twos are 34 and 34 plus 16, how much will come? This is 50. So 5049 is the product of this one. Then what I'll do, I'll just add this, I'll put the add sign and then again we will multiply it. So 3 sevens are 21, 2 carry, 3 nines are how much? 27, so 28, 29, again 2 carry and 3 twos are 6, so 7 and 8. Now we will add these two values. क्या मिलेगा हमें? 9 plus 1, 10, carry 1. Then 4 plus 9, carry was 1, so 10 plus 4, 14, carry 1, 8 plus 1, it will be 9 and 5. This is 5940. Okay, ये तो हमारा regular method था, normal method जो हम generally हम use करते हैं. But see, अभी हमने इससे पहले एक property पढ़ी थी, it is named as distributive property or distributivity. In that property हमने क्या पढ़ा था कि यदि हमारे पास एक नंबर जो सेम नंबर अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज मतलब a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो यहाँ पर a को हम b से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, c से भी. सो व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन टेक a कॉमन एंड देन फर्स्ट वी विल डू b प्लस c. पहले हम दो नंबर्स को ऐड कर लेंगे, डिफरेंट नंबर्स को ऐड कर लेंगे, फिर उसे कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो सेम थिंग वी कैन डू हियर एज वेल. यदि हम इस मेथड से करेंगे तो 297 हमारा a है, 17 इज b, again this is a and c, so a into b plus a into c. How we can write it? A, that is 297 into 17 plus 3, so this will become 297 into 20. 17 plus 3, it is 20. And now let us do the multiply. 2 sevens are 14, carry 1, 2 nines are 18 plus 1, 19, carry 1, 2 twos are 4 plus 1, that is 5, and 1 0 will come here. So this is 5940. See, answer is same, methods are different, है ना? और I think this one is the easy one. यदि हमें 17 की टेबल लर्न नहीं भी है तो भी हम इस मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना? सो बेटर इफ वी आर यूजिंग दिस मेथड. यहाँ पर क्वेश्चन में हमें मेंशन नहीं है दैट वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज. बाय यूजिंग प्रॉपर्टी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. यदि ऐसा होता क्वेश्चन कि हमें प्रॉपर्टीज का यूज करना है, सो डेफिनेटली वी विल गो फॉर दिस मेथड ओनली. फिर हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं करते. ओके, चलो नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो वी विल गो फॉर द मेथड बाय यूजिंग प्रॉपर्टी से ही हम इसको सॉल्व करेंगे. सी 5427, sorry this is, let me put the commas, 54,279 into 92 plus 8 into 54,279. नंबर हमारे पास सेम है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 92 से 8 से. अब यहाँ पर देखो जो हम नॉन कॉमन मतलब डिफरेंट नंबर्स हैं 92 और 8, इन दोनों को ऐड करेंगे, सो वी विल गेट 100 और 100 को इससे मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होगा, है ना? तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी ही यूज करेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑल्सो वी कैन राइट, that is a into b.
B plus C. Fine. So what will happen here? This 54,279 into 92 plus 8. So this will become 54,279 into 100. Now what we have to do? We have to write down the same number. ये number हम as it is लिख देंगे और उसके पीछे हम 2 जीरो लगाएंगे, राइट. 100 से मल्टीप्लाई करना सबसे इजी काम है, 100 के मल्टीपल से या 10 के मल्टीपल से. So answer is 54,27,900. Fine, this is the answer. Okay, now we will see the next part of the question. Okay, so this is question number third part C, that is 81,265 into 169 minus 81,265 into 69. Here the common number is 81,265, है ना. और हमें यहाँ पे क्या करना है? We have to do the subtraction. हम यहाँ पे subtraction कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? अगेन डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब a into b minus a into c. So this will become a into b minus c. Why? Because if we will subtract 169 from 69, यदि हम डिफरेंट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 100 मिलेगा, एंड अगेन 100 से मल्टीप्लाई करना हमारे लिए इजी होगा. ओके, सो व्हाट आई विल राइट हियर, 81,265 into 169 minus 69. So this will become 81,265 into 100. Okay, so this will be easy to solve now. 8126,500, one comma another comma. So this is 81,26,500. Okay, now we'll move to the next one, that is part D, and it is 3,845 into 5 into 782 plus 769 into 25 into 280. Now you can see here हमें यहाँ पर कुछ भी कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है ना. लेकिन लेट अस ट्राई, यदि हम यहाँ पर 782 और 218 को ऐड करते हैं, सो इट विल बी 82 प्लस 18 100. सो एंड दिस विल बी 800 एंड 900 एंड 1000. तो इन दोनों का एडिशन तो हमें 1000 मिलेगा. ओके, एंड अब हम देखते हैं कि इनका प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है बाकी के दो नंबर्स का. सो आई एम डूइंग हियर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर कर रही हूँ 3,845 into 5. 5 5s are 25, 2 carry, 5 4s are 20 plus 2, again 2 carry, 5 8s are 42, 4 carry, 5 3s are 15 and plus 1 19. So this is 19,225. अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 769 into 25, what will come? 25 nines are how much? 25 nines are, this will be 225. So 22 carry, 25 sixes are, 25 sixes are will be 150. So and 22 carry, so 2 7 and 1 2. 17 carry, 25 sevens are 175. 7 plus 5 12, carry 1 8 and 9, and this is again 1. So again 192. Now you can see from here that इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है दैट इज सेम, है ना. यहाँ पर भी हमें 384 को 3,845 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 19,225 मिल रहा है, एंड 769 को 25 से मल्टीप्लाई करने पर भी हमें 19,225 ही मिल रहा है. तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई these two and we are getting 19,225. Here I will write into 782 plus again इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर भी हमें क्या मिल रहा है? 19,225 into 280. ओके, नाउ यू कैन सी, अब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं. कैसे? a into b plus a into c. This is a, b plus a into c. So this will become what? a into b plus c. Okay. So what will happen here? This is 19,225 into a plus b plus c. So that is 782 plus 218. Okay. Now अब हम इसका एडिशन ऑलरेडी कर चुके हैं. That it is giving us 1000. So I will write it directly.
into 1000. Now you see we have to multiply 19,225 by 1000. So this is very easy. हम पहले सारे digits लिख लेते हैं, then we will put 3 zeros, 1 2 and 3. Now see this 2 and 2, so it will be 1,92,25,000. Okay, here also we use distributive property, पर हमने यहाँ पर क्या किया, पहले हमने इसे सिंप्लीफाई किया है, उस फॉर्म में लेकर आए हैं जहाँ हम उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वहाँ पर अप्लाई कर सकें. ओके, so this is question number 3. Now we will move to question number 4. Okay, so this is question number 4 that we have to find out the product. हमें यहाँ पर 4 parts दे करके रखे हुए हैं and every part has 2 numbers that we have to multiply. तो हमें इन सारे numbers को multiply करके इनके products बताने हैं using suitable properties. हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि कई बार बच्चे जो है वो क्या करते हैं, जस्ट दे विल जस्ट रीड द क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट. और कभी कभी तो क्या है ना, हमें अगर देकर के रखा है 854 इंटू 102, सो ऑब्वियसली हम इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. वी कैन सी इट डायरेक्टली, हमें दिख रहा है कि हमें इसे मल्टीप्लाई करना है. तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस एग्जाम में क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड नहीं करते हैं, है ना, और डायरेक्टली वो उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं. और ज़्यादातर क्या होता है कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वंस प्लेस को वंस प्लेस से, मीन्स पहले हम 2 को 854 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 0 को, देन 1 को, एंड देन वी विल ऐड ऑल 3 वैल्यूज एंड आंसर विल कम. पर हमें यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है. वी हैव टू यूज सूटेबल प्रॉपर्टी, हमें प्रॉपर्टी का यूज करना है. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी दिस इज 738 इंटू 103. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 738 इंटू 103 को ब्रेक कर देते हैं 100 प्लस 3 में. ठीक है, अब यहाँ पर सिंस दे हैव टोल्ड यू दैट वी हैव टू राइट डाउन दी वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टी, तो हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी के नेम को भी मेंशन करना पड़ेगा दैट वी आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हियर. अभी ब्रेक करने में मैंने यूज नहीं किया है, बट नाउ वी विल यूज हियर. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो हाउ वी विल डू इट, 700 दिस इंटू 100 प्लस 738 इंटू 3. पहले हम 738 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर हम 738 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो सी फर्स्ट पार्ट तो बहुत ईजी है, दैट इज 73800, 100 से ही मल्टीप्लाई करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. 3 8s are 24, 2 कैरी, 3 3s are 9, 10 11, 1 कैरी, 3 7s are 21 एंड प्लस 1 22. सी मैं यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर येस इट इज़ फास्ट. सो यू ऑल्सो प्रैक्टिस द सेम थिंग. हम जब भी मैथ्स कर रहे हैं हमारा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा शार्प होना चाहिए और फास्ट भी होना चाहिए. एक बार में ही मीन्स रैंडम कैलकुलेशन एंड वेरी फास्टली क्विकली कैलकुलेशन वी हैव टू डू. ओके, सो दिस विल कम व्हाट, 4 plus 0 4, 1 plus 0 1, 2 plus 8 10, and then 2 plus 3 5, plus 1 6, and this is 7 is again. So this is 76,014. 76,014. Okay. Now we will move to the next one, that is 854 into 102. Wait, distributive. Okay. Here you will write it as distributivity or distributive property, and you have to mention also like A into B plus C is equal to A into B plus A into C. हमें यहाँ पर ऐसा मेंशन करना है in this question also, and here also we will use distributive property, so in that question also. Okay, but since I have not enough space, so right now I am rubbing this thing. आपको मेंशन करना है 854. हमने यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखो हमने 738 को ब्रेक नहीं किया. क्यों? क्योंकि इसे हम ब्रेक करते तो ये होता है 700 प्लस 38, तो दोनों से ही मल्टीप्लाई करना टफ रहता है ना, इसलिए हमने इसे 100 और 3 में ब्रेक किया. 3 की की जो टेबल होती है वो भी हमें इजीली मतलब कैलकुलेट हम उसको कर पाते हैं. नाउ सी इन द सेम मैनर हम इंस्टेड ऑफ 854 102 को ब्रेक करेंगे 100 प्लस 2 में. अब यहाँ पर A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A into B plus A into C. So same we will do here. 854 into 100 plus 854 into 2. Now you see यहाँ पर तो हमने डायरेक्ट 85400
प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, कैरी 1, 2 8 ज़ा 16, प्लस 1 17. Never forget to put equal sign. Now what will be the answer? 8 plus 0 8, 0 plus 0 0, 7 plus 4 11, and 1 plus 5 6, plus 1 7, and 8 is 11. So this is 3, 87,108. I hope कि इन क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट नहीं होगा. सेम टाइप के क्वेश्चंस है और डिस्ट्रीब्यूटिविटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं. So that is why I am just solving the questions very quickly. Again you see 258 into 1008. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 258 into 1000 plus 8. Obviously 58 की टेबल रीड करने से बेटर हम 8 की टेबल को रीड करेंगे. So this will become 258 1 2 wait let me expand it first. पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को. That is 258 into 1000 plus 258 into 8. Okay, so it will be 258 1 2 and 3 plus this is 8 8s are 64, 6 carry, 8 5s are 40, 46, 4 carry, 8 2s are 16, 16 plus 4 20. So this is 0 plus 4 4, 0 plus 6 6, 0 plus 0 0, and 8 plus 2 10, and this will be plus 1 so 6 2. 2,60,064 is the answer. Now again we will move to this part B, that is 1005 will be broken into 1000 plus 5 into 168. So this will become, now you see multiply ब्रैकेट के इस तरफ हो या फिर उस तरफ हो, we have to do the same process. हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 168 को 1000 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे. You have to mention the property here as well, that is here we will write b plus c into a. क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, b plus c into a, and this will be equal to b into a plus c into a. So b into a will 168 plus 5 into 168. Okay, now you see this will become 168,123. हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो या तो हम 1000 को 168 से करें, है ना, या मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ, 1000 को 168 से मल्टीप्लाई करें या फिर 168 को 1000 से मल्टीप्लाई करें. आंसर विल बी सेम, राइट. सो हियर आई हैव रिटन डायरेक्टली. अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 168 को 5 से मल्टीप्लाई करो या फिर 5 को 168 से मल्टीप्लाई करो, है ना. अच्छा हम यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा लेते हैं. कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी यूज करके हम पहले नंबर्स चेंज कर लेते हैं. 168 into 1000 प्लस 168 into 5. यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, a into b is equal to b into a. Okay. Now next what we will do, we will multiply it directly, that is 168 1 2 3 3 and 1. Okay. Now next what will happen, plus 168 into 5. So 8 5s are 40, 4 carry, 8 6 are 8 5s are 44 carry, 5 8s are 40, 4 carry, and this is 5 6 are 30, so plus 4 3 carry, 5 1s are 5 6 7 8. So this is 840. Now we can add it very easily. 168 840, 1,68,840. मे बी आपको विजिबल नहीं हो, मैं रीड कर देती हूँ. 1,68,840 is the answer. Okay. So now we'll move to the next question, that is question number 5. Okay, so this is question number 5, and since the question is so much big, so I have not written the complete question. मैंने बस जस्ट आपके हिंट के लिए लिखा हुआ है कि क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है. बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं बुक से ही रीड करूँगी. ओके, सो लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. हमें पहले क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं हमें उनको पहले रीड करना होता है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इट इज सेइंग. जब भी हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए.
पहला तो कि उसमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, और दूसरा हमें फाइंड आउट क्या करना है ना। यदि हमें ये दो चीज़ें पता है तो हम इजीली इन दोनों में रिलेशन बनाकर आंसर निकाल ही लेते हैं, वी कैन फाइंड आउट द आंसर। सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। अ टैक्सी ड्राइवर filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday। उसने, एक टैक्सी ड्राइवर है जिसने अपना जो कार का पेट्रोल टैंक है उसने 40 लीटर ऑफ पेट्रोल से मंडे को फिल किया है। मतलब उसने मंडे को उसने 40 लीटर पेट्रोल अपने टैंक में, पेट्रोल टैंक में डाला है कार की। नाउ द नेक्स्ट डे दैट इज ट्यूसडे, ही फिल्ड द टैंक विथ 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। नेक्स्ट डे मतलब ट्यूसडे को उसने उसमें 50 लीटर ऑफ पेट्रोल और ऐड किया। ओके, नाउ इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर, यदि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल की, पर लीटर मीन्स 1 लीटर पेट्रोल की जो कॉस्ट है दैट इज ₹44, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, मतलब टोटल उसने कितना स्पेंड किया है पेट्रोल के ऊपर। ओके, सो सी हाउ मेनी इंफॉर्मेशन वी हैव गिवन। राइट नाउ आई एम जस्ट पुटिंग सॉल्यूशन हियर। फर्स्ट आई विल टेक cost of 1 लीटर पेट्रोल कितनी हो गई, ₹44 आई विल राइट, और जो ये जो रुपीज़ का सिंबल है दैट इज आर द न्यू एंड करेंट सिंबल, सो आई विल टेक दिस वन ₹44 है ना। ऑन मंडे अमाउंट ऑफ पेट्रोल filled on Monday, how much, that was 40 लीटर। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर 40 लीटर। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, पहले में क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया कि हमें टोटल कॉस्ट बतानी है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अच्छा वेट, आई राइट फॉर अमाउंट ऑफ पेट्रोल फिल्ड ऑन ट्यूसडे दैट इज 50 लीटर। चलो, इतना हमें गिवन था क्वेश्चन में कि 1 लीटर पेट्रोल की जो कीमत है, कॉस्ट है दैट इज ₹44। मंडे को उसने 40 लीटर फिल कराया है, ट्यूसडे को उसने 50 लीटर फिल कराया है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट दी टोटल कॉस्ट और टोटल अमाउंट ही स्पेंड ऑन द पेट्रोल। सो सी, अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें टोटल कॉस्ट पता होनी चाहिए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसने मंडे को कितना पे किया पेट्रोल पर और ट्यूसडे को कितना पे किया पेट्रोल पर। मतलब ये हमें 40 लीटर दे करके रखा हुआ है, तो मंडे को इसकी कितनी कॉस्ट है, टोटल उसने कितना पे किया, दैट वी विल फाइंड आउट, दैट इज 40 × 44। 1 लीटर का पता है, 40 लीटर का निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट विल बी द आंसर, 4 4s are 16, कैरी 1, 4 4s are 16, 17, 1760, 1760 रुपीज ही स्पेंड ऑन मंडे ऑन पेट्रोल। ठीक है, अब ट्यूसडे का हमें निकालना है, सो दिस विल बी 50 × 44, राइट, 50 × 44 होगा। वाई, बिकॉज 1 लीटर पेट्रोल की जो कीमत है, कॉस्ट है, दैट इज 44 एंड वी हैव टू फाइंड आउट फॉर 50, सो वी विल मल्टीप्लाई। नाउ अगेन 5 4s are 20, 2 कैरी, 5 4s are 20, 2 कैरी 2 20। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, मैंने मल्टीप्लाई अपोजिट कर दिया है क्योंकि मैंने इन नंबर्स को इस तरीके से इमेजिन कर लिया था, वैल्यू को इंटरचेंज करके, है ना। तो यहाँ पर हमने कौन सी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी ही तो यूज़ की है, इमेजिन कर लिया था, इसलिए मैंने इस तरफ से इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। बट डायरेक्टली यू नेवर डू दिस थिंग, या तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर लो या फिर वैल्यू को चेंज करके रख लो, मतलब टर्न करके लिख लो, 44 × 50 लिख लो तो वो ईजी रहेगा। ठीक है, ओके, सो ट्यूसडे को उसने इतना रुपीज स्पेंड किया पेट्रोल पे। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन पेट्रोल। तो वो क्या होगा, जो उसने मंडे को जो उसने अमाउंट उस पर स्पेंड किया है दैट इज एंड प्लस ट्यूसडे। मैंने यहाँ पर प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं लिखा है, ऐसे हमें नोट डाउन नहीं करना है, वी हैव टू राइट ऑन द प्रॉपर मंडे प्लस ट्यूसडे, मतलब हम दिन ऐड नहीं कर रहे हैं, वी हैव टू ऐड द अमाउंट स्पेंड ऑन मंडे, अमाउंट स्पेंड ऑन मंडे ऑन पेट्रोल एंड अगेन अमाउंट स्पेंड। ओके, सो मंडे को कितना, वेट दिस इज 50 एंड हाँ, मंडे को कितना अमाउंट था 1760, सो दिस इज 1760 प्लस ऑन ट्यूसडे इट वाज 2200 और 2200। नाउ वी विल ऐड इट। अब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमें मिलेगा 0 + 0 0,
6 plus 0 again 0, 7 plus 2 9 and 1 plus 2 it is 3. So 3,900 is the total amount that he spent on the petrol. Okay. Now you see ये तो हमारा जनरल मेथड था जो हम अभी तक मतलब जनरली यूज करते हैं. बट यदि आपको याद हो तो हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि हमने 40 लीटर पेट्रोल के साथ भी 44 यूज किया है एंड 50 लीटर पेट्रोल के साथ भी 44 यूज किया है. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट दिस मच बिग, व्हाट वी विल डू, डायरेक्टली वी विल राइट 44 will multiplied it by the total amount of petrol. Total amount of petrol कितना है हमारे पास? 40 plus 50, right? So this will become 44 into 90 and this will be equal to 9 fours are 36, 3 carry, 9 fours are 36 plus 3 39. So see 3000, wait, यहाँ पर इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? इसलिए क्योंकि 0 plus 6 जो होगा वो 6 ही होगा. ठीक है. So 3,960 rupees he spent on the petrol. Answer is same. Difference is difference of the method. Method का अंतर है और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेथड हमें ज़्यादा इजी पड़ा है ना. So we will go with this method. Try to use that property. देखो क्या होता है ना, हम जब भी कुछ नया लर्न कर रहे होते हैं या हमने कुछ लर्न किया होता है तो जब तक हम उनको प्रैक्टिस में लेकर नहीं आते हैं ना तब तक वो चीज़ फिर हमारे डेली लाइफ में यूज़ हो नहीं पाती है और हो भी नहीं पाती है और साथ में वो फिर हम भूल जाते हैं. फॉर एग्जांपल टेबल्स इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है. हम टेबल्स लर्न तो बहुत करते हैं, बहुत मेहनत से लर्न करते हैं. 10 तक, 12, 15, 20, 30 तक भी हमें टेबल्स लर्न होती हैं. पर चूंकि हम उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर हम उन्हें डेली रिकॉल नहीं कर रहे हैं, यूज़ कहाँ नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. टेबल्स का यूज़ हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही करते हैं ना. तो जब हम वो यूज़ नहीं कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे, और हम या फिर रिकॉल नहीं कर रहे होते हैं, डेली हम उन्हें लर्न नहीं करते हैं, रीड नहीं करते हैं, तो हम क्या होता है धीरे धीरे सारे टेबल्स भूल जाते हैं. फिर हम बोलते हैं अरे हमने याद तो किया था लेकिन वी फॉरगॉट. ओके. सो डोंट डू दिस थिंग. कुछ जो नया आप पढ़ रहे हैं उसका यूज़ कीजिए. कॉम्पिटिटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यदि आप लर्न की है, आपने समझी है, आपको पता है कि उनका यूज़ कहाँ और किस तरीके से होता है तो यूज़ इट वेदर इट इज़ मैंशनड और नॉट. यदि मेंशन नहीं भी है कि प्रॉपर्टी का यूज़ करो तो भी आप उसको यूज़ करके देखो. ओके. चलो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग. हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं और जो भी गिवन है वो मैं लिखती जाऊंगी. दैट इज अ वेंडर सप्लाई 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग एंड 68 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग. सो डायरेक्टली आई एम जस्ट राइटिंग मॉर्निंग में amount of milk you can write supply in the morning is 32 liter. Okay. And next it is evening. Evening में कितना हो रहा है? 68 liters. Fine. Morning में इतना हो रहा है, evening में इतना हो रहा है. Now if the milk cost rupees 15 per liter, 1 liter cost of 1 liter ऑफ मिल्क. 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क की जो कीमत है वो कितनी देकर के रखी हुई है? ₹15. वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे. तो जो वेंडर है उस पर डे कितना मनी ड्यू है, ठीक है, उसे कितना लेना है. सो हाउ वी विल कैलकुलेट? सी इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो आई टोल्ड यू हाउ वी आर डूइंग इट. सेम वैसा ही है. हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वांटिटीज वी हैव गिवन और चूंकि ये मिल्क है इसकी भी 15 रुपीज़ पर लीटर कॉस्ट है, इसकी भी 15 रुपीज़ पर लीटर कॉस्ट है. तो हम क्या करेंगे, पहले हम टोटल निकाल लेंगे, टोटल क्वांटिटी देख लेंगे मिल्क की कितनी है, फिर हम उसे डायरेक्टली 15 से, मतलब पर रुपीज़ 15 है, सॉरी पर लीटर 15 रुपीज़ है, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना. तो हम यहाँ पर अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे. हाउ वी आर यूजिंग इट? मनी ड्यू टू द वेंडर will be equal to कितना होगा? 15 into total amount, that is 32 plus 68. So it will be equal to 32 plus 68. What will come? 8 plus 2 10, 6 plus 3 9 and 10. See कितना easy हो गया. 1500.
₹1500 इज टोटल ड्यू टू द वेंडर। अब यदि हम ऐसा करते मीन्स ये मेथड भी हम यूज़ कर सकते थे कि 32 इंटू 15 करें हम पहले, फिर हम 68 इंटू 15 करें, यही करते ना, फिर हम इन दोनों को ऐड करते थे। कितना आता 15 2 33 कैरी, 15 3 45, 46, 47, 48। फिर यहाँ पर कितना आता 15 8 सोचो जल्दी कितना होता है, 15 8 120, सो 12 कैरी एंड 15 6 90, सो दिस विल बी 102, means like 102 will come, so this will be 1020. Okay, now you see you added 0 plus 0, 2 plus 8 10, 4 plus this will be 5 and 1, so again answer is same, that is 1500. but you see हमने यहाँ पर क्या किया है, पहले हमने मॉर्निंग में जो जितना अमाउंट था मिलकर उसको 15 से मल्टीप्लाई किया, इवनिंग में जो अमाउंट था उसको 15 से मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया, है ना। तो इतना लॉन्ग प्रोसेस करने की वजह हम यहाँ पे देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, a इंटू बी प्लस b इंटू ए प्लस c इंटू ए, है ना। तो ये हो जाएगा क्या a इंटू बी प्लस सी। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर एक स्टेप कम करके हमने इसे इस तरीके से सॉल्व किया। ओके, आंसर विल बी सेम, मेथड कोई भी हो, पर हमें प्रॉपर्टीज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है ताकि वो हमारी प्रैक्टिस में आ सकें। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7. So this is question number 7 in which we have to match the followings. We have given one sided, we have given Roman numbers, and another side we have given these alphabets, and 3 3 are there, so we have to match it. Okay, मैंने एक तरफ नहीं लिखा हुआ है क्योंकि हम प्रॉपर्टीज पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। सी फर्स्ट वन 425 इंटू 136 है, 425 को 136 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर हमने उसे 136 को ब्रेक कर दिया है 100 प्लस 30 प्लस 6 में, है ना। अब हमने एक नंबर को ब्रेक किया है और फिर हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली ये क्या हो रहा है यहाँ पर, वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस 425 टू ऑल दीज नंबर्स। सो फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यू कैन राइट distributive, I think it is written distributivity of multiplication over addition. Okay, so you can write distributivity of multiplication over addition. Fine, now you see next one, this is 2 into 49 into 50 and 2 into 50 into 49. अब ध्यान से देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, इन नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया 49 50 50 49, तो हमें यहाँ पर किस प्रॉपर्टी का यूज किया है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिविटी यू कैन राइट, एंड यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दिस विल बी अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, नाउ यू सी नेक्स्ट वन 80 प्लस 2005 प्लस 20, 80 प्लस 20 प्लस 2005, नंबर इज सेम, ऑर्डर चेंज हुआ है, सो हियर इज अगेन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिविटी अंडर व्हाट, अंडर एडिशन, क्योंकि हम यहाँ पर एडिशन कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.2 एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो फॉर 2.3 and we will see the patterns also, जो भी पैटर्न्स हमें देकर के रखे हुए हैं बिफोर 2.3, दैट ऑल्सो, एंड देन वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 2.3.